In today's lecture, we are going to solve the numericals on welded joints. Before solving the numericals, you can see the different formulas which I have already given in my previous lecture. You can see the formula for single transverse and double transverse fillet weld. These welds are designed based on the failure due to tensile stress, failure due to टेंशन. सिंगल एंड डबल थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूलेज में. यू कैन सी द फॉर्मूला. ओके, ऑल्सो वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर सिंगल एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड्स. सिंगल एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड्स, these welds are designed for the failure due to shear stress. Okay, so the only difference between the formula is instead of sigma t, here tau, there is tau, shear strength of the weld. Okay, and the third case is डिज़ाइन ऑफ कम्बाइंड सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. ओके, इसमें एक ट्रांसवर्स है एंड दो पैरेलल फिलेट वेल्ड्स है. ओके, सो इसमें द डब्ल्यू विल बी शेयर्ड बाय द ट्रांसवर्स फिलेट एंड ऑल्सो विद द पैरेलल डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. ओके, सो इसमें डब्ल्यू टी एंड डब्ल्यू एस ये दोनों आएगा. डब्ल्यू टी में सिर्फ सिंगल ट्रांसवर्स का फॉर्मूला है एंड लेंथ विल बी L1 एंड WS में डबल पैरेलल का फॉर्मूला है एंड लेंथ विल बी L2 एंड इंस्टेड ऑफ सिग्मा टी हियर इज टाउ. ओके, एंड दिस W total W acting on the plates will be the summation of the WT and WS. So final formula will be this. Okay, so once you have revised these formulas, you can go for the numericals. So these are the three numericals which you have to solve in this lecture and also in the experiment number 11. ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 के ये तीनों न्यूमेरिकल्स है जिसमें तुमको ये तीनों इक्वेशंस लिखना है, उनके रिस्पेक्टिव डायग्राम्स बनाना है और उसको सॉल्व करना है. ओके, सो विल टेक द फर्स्ट question. You can see the first question. Two steel plates. We will read the question and write down the given data. Okay, so two steel plates 120 millimeter wide and 12.5 millimeter thick are to be connected together by double transverse fillet weld. The maximum tensile stress for the plate and welding material is not to exceed 70 Newton per millimeter square. Find the length of weld required for maximum static loading. Okay, this question was asked in G scheme for 4 marks. Okay, now this is for double transverse. Double transverse means we have to design based on the tensile strength. Okay, now we'll write down the given data. This will be the diagram for this. This is double transverse ना, so this will be the diagram. ओके, ये डायग्राम तुमको क्वेश्चन में ड्रॉ करना है. ठीक है, नाउ विल राइट डाउन द गिवन डेटा. द विड्थ ऑफ द मटेरियल इज गिवन, विड्थ ऑफ द प्लेट्स आर गिवन एंड इट इज़ 120 millimeter. ओके, now its thickness is given. Now thickness के लिए we use the alphabet S because this becomes only the size of the weld. So it is given 12.5 millimeter to be connected together by a double transverse fillet weld. The maximum tensile stress for the plate and welding material sigma T is given 70 Newton per millimeter square. Find the length of the weld. L is unknown for maximum static loading. Okay, so it is for maximum static loading. So for maximum static loading, now there is no capital letter W is not given and our formula for double transverse fillet weld के लिए ये formula है जिसमें कैपिटल लेटर W इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इसमें S दिया हुआ है, L इज अननोन एंड सिग्मा T इज गिवन. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल लेटर W. ओके, सो हाउ विल गेट द कैपिटल लेटर W? एक्चुअली द डायमेंशंस ऑफ द वेल्ड्स जो है उससे ही हम वो निकालेंगे. ठीक है, कैसे? द मटेरियल स्ट्रेंथ इज गिवन. ओके, सो स्ट्रेस का जो ये हमारा फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन area. Now a transverse fillet weld में the area considered is cross sectional area which is perpendicular to the capital letter W. So W will become, here the formula for W we know that, since we know that capital letter W will be sigma T into area, cross sectional area of the weld.
ओके. सो W इज इक्वल टू दिस, W विल बिकम, बिकॉज इसकी जितनी मटेरियल की स्ट्रेंथ है उतनी मैक्सिमम स्टैटिक लोडिंग के लिए वी आर डिजाइनिंग द वेल्ड. ओके. सो दिस विल बिकम 70 इंटू एरिया. एरिया विल बी 120. तुमको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट. ओके. सो दिस विल बिकम 120 इंटू 12.5. now whatever will be the answer, it will be in Newton, because this is in millimeter and this is Newton per millimeter square. So what we'll do, we'll simply use our calculator. 70 into 120 into 12.5, this comes 1105 into 10 raised to 3. ओके. सो 105 इंटू 10 raised to 3 न्यूटन. तो हम लोग को यहाँ से W मिल गया. ठीक है. ये कैलकुलेशन में ये एक ही अलग स्टेप है. और रेस्ट ऑफ द स्टेप इज योर फ्रॉम योर फॉर्मूला. सो फॉर फेलियर ऑफ डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड ड्यू टू टेंशन. सिर्फ फेलियर ड्यू टू टेंशन लिखा तो भी चलेगा. ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा है. तुम सिर्फ फेलियर ड्यू टू टेंशन लिखेंगे तो भी चलेगा. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? W इज इक्वल टू 1.414 इंटू SL इंटू सिग्मा T. ओके. नाउ विल पुट द गिवन डेटा. जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो यहाँ पे लिख देंगे. इंटू 10 raised to 3 1.414 इंटू S जो है वो 12.5 है, इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड इज अननोन एंड सिग्मा T इज गिवन 70. सो विल गेट L. तुमको कैसे मिलेगा L? विल चेंज द साइड. L को वन साइड रखेंगे, बाकी सबका साइड चेंज कर देंगे. 105 इंटू 10 raised to 3 डिवाइड बाय 1.414 इंटू 12.5 इंटू 70. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मिलीमीटर, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर. ओके. मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर में ऑलरेडी 105 इंटू 10 raised to 3 है. सो आई विल डिवाइड दिस बाय 1.414 इंटू 12.5 इंटू 70. ओके. सो आई गॉट 84.85 millimeter. Now this is the length of weld. Now we have to add the weld run. Now for starting and stopping of weld run 12.5 millimeter is added to the length of the weld. तुमको पता है कि वेल्ड जब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कर्व जैसा ये रहता है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए. सो एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ तो इतना रहेगा 84.865, बट व्हेन विल ऐड द वेल्ड रन देन टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड विल बिकम 97.36. सो वी हैव टू ऐड द वेल्ड रन ऑफ 12.5 millimeter in this numerical. So this completes your this question number. Now we'll see the second numerical. A plate 100 millimeter wide and 10 millimeter thick is to be welded by another weld by means of double parallel fillet welds. The plates are subjected to a static load of 80 kilonewton. Take permissible shear stress as 55 newton per millimeter square. So this is the case of the double parallel fillet weld. Now we have seen the formulas. See, this second diagram is applicable for this case, double parallel fillet weld. This will be the diagram, and in this diagram as per the given data we'll write as per the question we'll write down the given data. Okay. So मैं क्या करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़कर जो है वो गिवन डेटा लिखती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 है ये. A plate 100 millimeter wide, width of the plate is given 100 millimeter and thickness becomes the size of the weld, that is 10 millimeter by another weld. The plates are subjected to a static load. Capital letter W is given 80 kilonewton and permissible shear stress means tau is given 55 newton per millimeter square. Now we know that the parallel fillet welds are designed for the failure due to shear stress. So I'll write down, and this is double parallel, so my formula will be this. ये वाला जो ब्लॉक में फॉर्मूला है ये वाला रहेगा. ठीक है. ओके. सो फेलियर ऑफ डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड ड्यू टू
shear. After drawing the diagram and writing the given data, you can solve the numerical like this. ठीक है, मैं यहाँ पे वही numerical solve कर रही हूँ. So this becomes W is equal to 1.414 SL into tau. Okay, we are designing. Actually यहाँ पे उसने question में कुछ भी mention नहीं किया है. ठीक है, and this question is from the I mark 6 मार्क्स के लिए आई स्कीम का है, बट उसमें 3 मार्क्स ये थियरी क्वेश्चन पर है एंड 3 मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल है. यहाँ उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि क्या डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो यू कैन ऐड विद योर फ्रॉम योर साइड इन क्वेश्चन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड. ओके, बिकॉज 3 मार्क्स के लिए इतना सिंपल सिर्फ लेंथ ऑफ वेल्ड का ही कैलकुलेशन हो सकता है. ठीक है, सो विल राइट डाउन दैट. ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट तो तुमको नहीं करना है असाइनमेंट में, ये फर्स्ट कैलकुलेशन करना है. ओके, सो मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड जो है यही मेरा अननोन कंसीडर करके इसको कैलकुलेट करती है. ओके, सो W इज़ गिवन 80 इंटू 10⁻³ लिखती हूँ मैं, बिकॉज टाउ इज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. 80 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.414 इंटू S इज 10 इंटू लेंथ इज अननोन एंड टाउ इज 55. ओके, नाउ अगेन adjust the equation and calculate the unknown. 80 into 10⁻³ divide by 1.414 into 10 into 55. The answer will be in millimeter. Now use your calculator and try to solve on your own. Okay, so my numerator is 80,000 divide by 1.414 into 10 into 55. Okay, so 102.86. The length of weld will be this 102.86. Now what we'll do, we'll add the weld run. Now after adding weld run, the length of weld will become 102.86 प्लस 12.5 का वेल्ड रन हम इसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स 115.36 millimeter. So length of weld will be this. Now this completes your second numerical, okay, of experiment number 11. Now the third question is a plate 75 millimeter wide and 12.5 millimeter thick is to be joined with another plate by single transverse and parallel fillet weld. यहाँ पे डबल ऐसा लिखा नहीं है, बट इट इज़ कंसीडर्ड दैट इट इज़ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड, बिकॉज हमारे सिलेबस में ये 3 ही टाइप का डिज़ाइन है, या तो सिंगल ट्रांसवर्स डबल ट्रांसवर्स हो, सिंगल पैरेलल डबल पैरेलल हो, या तो फिर सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड हो, जो थर्ड कैटेगरी जिसका मैंने तुमको फॉर्मूलेज लिखा है. ठीक है, सो इट इज सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. मैक्सिमम टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेसेस आर 70 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सिग्मा T 70 है एंड टाउ इज 56 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड. देखो क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट करना है पैरेलल फिलेट वेल्ड का लेंथ. ओके, इफ जॉइंट इज सब्जेक्टेड to 90 kilonewton and capital letter W is given 90 kilonewton. Okay, now why specially it is mentioned? Now this diagram will be this: single transverse and double parallel. There are two lengths. One is for the transverse fillet weld and second one is for the double parallel fillet weld. ट्रांसवर्स के लिए विल टेक L1 एंड डबल के लिए विल टेक L2. ओके, नाउ स्पेशली इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. व्हाई? बिकॉज जो विड्थ उसमें दी हुई है इक्वेशन में, दैट विड्थ विल बिकम द विड्थ ऑफ दिस, किसी एक प्लेट की विड्थ बन जाएंगी, तो उससे हमको ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के लिए लेंथ वहाँ पे डायरेक्टली हमको मिल जाती है. ओके, ना ये डायग्राम जो क्वेश्चन में रहेगा वो ये डायग्राम ये वाला बनेगा एंड द रिस्पेक्टिव फॉर्मूलेज विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल. ठीक है, तो डायग्राम तो तुम लोग क्वेश्चन पर लिखने के बाद में सबसे पहले उसके नीचे डायग्राम बनाएंगे. ओके, ना आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम नाउ आई राइट डाउन द गिवन डेटा. क्वेश्चन पढ़कर मैं उसका गिवन डेटा लिखती हूँ उसके नीचे. ओके, देखो मैं यहाँ पे तुमको लिख कर बताती है गिवन डेटा. ओके, द प्लेट का विड्थ जो है वो 75 मिलीमीटर है. थिकनेस बिकम्स द साइज ऑफ द वेल्ड, इट इज़ 12.5 मिलीमीटर, इज टू बी ज्वाइन विद अनदर प्लेट बाय सिंगल ट्रांसवर्स एंड पैरेलल प्लेट.
मैक्सिमम सिग्मा टी जो है ये 70 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है एंड टाउ इज़ गिवन 56 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड. ओके, L2 जो है वो हमको कैलकुलेट करना है एंड दिस वेल्डेड जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग ऑफ 90 किलो न्यूटन. ओके, ना डायग्राम जो है वो है वो तुम्हारा, अब मैंने सारा गिवन डेटा क्वेश्चन से लिख दिया है. डायग्राम ये है. ओके, नाउ व्हाट विल डू, नाउ विल फर्स्ट फिक्स द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. उसके लिए मैं क्या करती है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो विड्थ दी हुई है दैट विड्थ विल बी taken for this plate and that is 75 millimeter. ये वाली width दी हुई है. Okay, so since the width of the plate is given 75 millimeter, then the length of transverse fillet weld जो कि single transverse fillet weld है that will become L1. ठीक है, अब मैं इसमें से वेल्ड रन माइनस करके लिखती हूँ बिकॉज ये जो ये टोटल स्ट्रेंथ है ना, बट इतना जो वेल्ड रन का जो पोर्शन रहेगा यहाँ से इतना, ये वाला, ये मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ. सो मेरी इफेक्टिव लेंथ रहेगी फॉर द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, दिस लेंथ इज इफेक्टिव लेंथ. ये कौन सी वाली लेंथ है, इफेक्टिव वाली लेंथ है. इफेक्टिव लेंथ, इज इट विजिबल इन योर स्क्रीन? ओके, नाउ दिस इज 75 माइनस 12.5, तो L1 मिल गया मुझे. कितना रहेगा L1? 75 माइनस 12.5, दिस इज 62.5 मिलीमीटर. ओके, सो मुझे यहाँ पे L1 मिल गया. नाउ माई नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी फॉर L2. नाउ व्हाट आई विल डू, ठीक है, वो L2 के लिए मैं क्या करेगी, द लोड कैरीड बाय, हाँ मेरे को अभी यहाँ पे W जो है इस यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला है वो W इज इक्वल टू WT प्लस WS है. WT में L1 आता है, वो L1 मुझे मिल गया है. ओके, सिग्मा T मेरे पास है, S भी है, टोटल W है मेरे पास. L2 जो इस पूरी इक्वेशन में जो रहेगा वो सिर्फ L2 अननोन रहेगा. ओके, सो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा इतना बड़ा ब्लॉक लिखने के बजाय एक साथ मैं एक एक करके लिखती हूँ. नाउ मेरे पास L1 है, सो फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल वही सेम स्टेप्स में मैं यहाँ पर लिखाती हूँ. फॉर सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड WT जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0.707 इंटू S इंटू L1 इंटू सिग्मा T. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ही कैलकुलेट भी कर सकती हूँ. S कितना है मेरा 12.5 इंटू L1 मुझे कितना मिल गया 62.5 इंटू सिग्मा T कितना है 70. सो WT मुझे मिल जाएगा यहाँ से 0. यूज़ योर ओन कैलकुलेटर्स. 707 इंटू 12.5 इंटू 62.5 इंटू 70. ओके, मैंने ये निकाल लिया है. दिस इज इन न्यूटन. 38.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन. 38.66 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ठीक है, जो मेरा कैलकुलेटर में आया मैंने वही वैल्यू लिखी हुई यहाँ पर. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द सेकेंड WS फॉर डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. नाउ लोड शेयर्ड बाय डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. ओके, ये जो पहला वाला था इट वाज लोड शेयर्ड बाय सिंगल ट्रांसवर्स. ये लोड शेयर्ड बाय सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड था. सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड. ठीक है, नाउ लोड शेयर्ड बाय डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड. ठीक है, सो फॉर उसके लिए फॉर्मूला है डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए मेरे पास फॉर्मूला है
डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1.41, ये डबल है इसलिए 1.41 का फैक्टर आएगा, एस इंटू एल टू इंटू टाउ, ठीक है। नाउ हियर L2 इज़ अननोन 1.414 इंटू एस जो है ये 12.5 है, इंटू L2 इज़ अननोन एंड टाउ इज़ गिवन 56। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, जितनी नोन नंबर्स है उतने कैलकुलेट कर लेती हूँ। 1.414 इंटू 12.5 इंटू 56। ओके, सो दिस कम्स 989.8 L2। सो मेरे को WS मिल गया। Okay, now the total strength of the weld W will be the summation of WT and WS. So I'll write total strength of weld will be W is equal to WT plus WS and total load, total कितना उसके ऊपर लोड आ रहा है, इट इज़ 90, इक्वेशन में दिया हुआ है वो 90। सो आई विल राइट 90 इंटू 10⁻3 क्योंकि मेरा WT और WS जो है ये न्यूटन में ना, ठीक है। सो WT कितना मिला है मुझे 38.66 इंटू 10⁻3 प्लस WS मुझे कितना मिला है 989.8 L2, ठीक है ना। इन दिस कंप्लीट इक्वेशन ओनली L2 इज़ अननोन, तुम लोग को L2 यहाँ से मिल सकता है ना। हाउ विल गेट द L2, मैं क्या करती हूँ, इसको एडजस्ट करती हूँ और साइड चेंज करती हूँ अननोन की। 989.8 L2 इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻3 माइनस 38.66 इंटू 10⁻3, 90 माइनस 38.66, 51.34, दिस कम्स 51.34 इंटू 10⁻3, ये न्यूटन है। 989.8 L2, सो L2 कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 51.34 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 989.8, 989.8 ओके इंटू 51.869। सो मुझे लेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड मिल गई 51.869 मिलीमीटर, और यू कैन राउंड इट टू 52 मिलीमीटर। राउंड करो नहीं करो से मार्क्स पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वी हैव टू ऐड द वेल्ड रन इन दिस, ठीक है। ये इफेक्टिव लेंथ रहती है, ये जो फॉर्मूलेज में रहती है ये इफेक्टिव लेंथ रहती है, बट वी हैव टू ऐड द वेल्ड रन। सो आफ्टर एडिंग वेल्ड रन, now मेरा L2 will become 51.869 plus 12.5 plus 12.5, so it comes 64.369 millimeter. So my final answer, and that only was asked in the question, the length of the parallel fillet weld. So length of the parallel fillet weld is 64.369 millimeter. Okay, so all these three questions you have to solve in the experiment number 12. Okay, now the portion for the unit test 2, second unit test will be only except the question chapter number 1 and 2, because in unit test 1 I have asked the 2 chapters, fundamentals of design and design of joints, levers and offset links. Now the rest of the portion from the design of shaft, keys and coupling, design of power screws, design of springs, ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन, डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग तक पोर्शन, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर्स है, 3 नहीं एक्चुअली वो 4 चैप्टर्स है, बिकॉज जो फास्टनर्स है दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, welded joints and threaded joints. These all will be the portion of the second unit test. Okay, so do your preparation and perform well in the unit test.